पास्टर पीटर जी। धन्यवाद पास्टर पीटर जी और आप सभी को सुबह का नमस्कार, साथ ही साथ मसीह यीशु के नाम से अभिनंदन। And I'm so delighted to be here with all the Lucknow family members this morning. और इस सुबह एकदम मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ अपने लखनऊ के परिवार से मिलते हुए। Even though physically we are far, but in the presence of God, we are together this morning. और इस सुबह यद्यपि हम शारीरिक तौर से बहुत दूर दराजे में हैं, मगर आत्मिक तौर से हम एक ही साथ हैं। And I believe this day that the Lord is going to minister to us. Wherever we are right now this morning, the Lord is going to minister to us this morning. और जहाँ कहीं पे भी हम क्यों ना हो, मगर इस सुबह परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे, अपना And कार्य करेंगे। thank you, Pastor Peter, for your warm welcome. And all those pastors and the leaders of the church, I just want to greet you this morning. और धन्यवाद पासवान पीटर जी और आपका एकदम ही अच्छा स्वागत के लिए और संपूर्ण अगुवे तथा पासवानों के लिए भी मेरा अभिनंदन। It's a special day. 23rd of May is a special day. तो 23 मई का जो आज की तारीख है, ये एकदम ही विशेष दिन है, विशेष तारीख है आज। Number one, it is a day we call the Pentecostal day. और पहली बात ये है कि आज के दिन को हम कहते हैं पेंतिकुस्त का दिन। It's not because of Sunday, rather, normally after the Easter on the seventh Sunday has been celebrated as the Pentecostal Sunday. इतवारी ना होने के इतवारी के अलावा भी हम देखते हैं 7वें दिन के बाद हम देखते हैं पेंतिकुस्त का दिन आता है और मनाया जाता है। And so the world is celebrating the day of Pentecost today. और आज दुनिया के लोग पेंतिकुस्त का दिन मना रहे हैं। And I'm so glad that even in this day of Pentecost, God enabled me to minister to you. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये पेंतिकुस्त के दिन में भी परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करने जा रहे हैं। And the second thing is God have blessed us, with his son Jonathan, and it is his birthday. 23rd of May is his birthday. So the second joy is that we are celebrating Jonathan's birthday this day. और 23 मई के दिन हमें परमेश्वर ने बेटा जोनाथन को दिया था और आज उसका बर्थडे है और उनके साथ ही साथ हम उत्साह उल्लास को हम मना रहे हैं। So in short, it's totally a blessed day. It's the day of joy in our life. और ये पूर्ण रूप से आनंद का दिन है। आज के दिन हमारे लिए संपूर्ण आशीषमय और आनंद का समय है। Even we have so many issues around us, but the Lord is with us. यद्यपि हम चारों ओर समस्याओं से परिस्थितियों से घिरे हैं, मगर परमेश्वर हमारे साथ हैं। And I believe the Lord will, bring out of all the situations what we are going through, in this season. और इस समय में जिस परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, परमेश्वर हमें उन संपूर्ण परिस्थितियों से उभारेंगे। Hallelujah. आमीन। And के वचन में प्रवेश करते हैं। And Pastor Peter and family is also need prayers as they got the first shot. I think they have, a little bit tiredness in the body, but we'll continue to pray for Pastor Peter and family as well. और हम पासवान पीटर और उनके परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। जैसे उन्होंने पहला टीका कोविड का लिया है, तो उसके वजह से थोड़े से शरीर में थकावट और थोड़ी सी समस्या आने की संभावना है, तो हम उनके भी प्रार्थना में जरूर स्मरण रखें। And I'm happy to see Pastor Sumit also. God bless you for being here this morning. और इस सुबह पास्टर सुमित को भी होते हुए मैं देख पा रहा हूँ, इसके लिए खुश हूँ। परमेश्वर आपको आशीषित करे। So let's get to the word of God today. For today's short meditation, I'm going to take your attention to the book of Acts because it is a day of Pentecost. So we are going to see from the book of Acts, and we are going to the first chapter, and verses 3 to 14 is the verse that we are going to take for the day's meditation. तो आइए हम वचन की ओर प्रवेश करें हैं और एक आज के लिए संक्षिप्त मनन के लिए मैं आपको प्रेरितों के काम की पुस्तक में लेके जाऊंगा, जहाँ पे पेंतिकुस्त का जिक्र है। प्रेरित पहला अध्याय उसका 14 से आगे की ओर। 14 onwards, pastor?
no, 3 verses 3 towards 14. Yeah, 3 Okay. to 14. पहला अध्याय उसका 3 अध्याय से 14 अध्याय तक 14 Uh, तक। and I'm seeing Rajesh Shekhar. Rajesh Bhaiya is also have joined us. So thank you, Rajesh Bhaiya, for joining us this morning. और राजेश भाई भी मैं देख पा रहा हूँ उन्हें भी, जो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। So for today's meditation, we are going to give the topic for discussion is, hey, man of God, what are you looking at? तो आज के मनन के लिए हम शीर्षक देंगे है, परमेश्वर के बंदे किस बात के लिए तुम देख रहे हो। What are you looking at is the question, the topic for the day. और आज के दिन के लिए यहाँ पे सवाल है कि हे परमेश्वर के बंदे किस बात को तुम देख रहे हो, किस चीज को तुम देख रहे हो। And when we look in the book of Acts chapter 1, it is a chapter with lot of confusions and lot of tensions which is around the disciples. तो ये हम यहाँ पे देखते हैं, इस अध्याय में हम देखते हैं, प्रेरितों के काम में इस संदर्भ में हम देखते हैं बहुत ज्यादा ही एक दुविधा का एक माहौल हो रखा है चेलों के बीचों में। And almost last 1.5 months, they were totally confused. It was not an easy journey for them. और पिछले 1.5 महीना उनके लिए एक आसान सा जीवन यात्रा नहीं था, समय का एकदम दुविधा से भरा हुआ समय था। All the dreams and all the hopes were crashing down. और उनके जितने भी स्वप्न थे, उनके जितने भी आशाएं थी, वो टूटती जा रही थी। And there were a time where they got into a junction of fear. They couldn't push forward in their life. और ऐसा समय उनके जीवन में आया वो लोग एक भय के, एक डर के एक चौराहे में वे खड़े हुए जहां से वे आगे को बढ़ नहीं पा रहे। And when I was meditating the word, the Spirit of the Lord have shown me the current situation, the current stage, what we are going through. Even in this pandemic, we are in a junction at looking around and we are confused, we are disturbed, our dreams and hopes are getting collapsed and we are in a crashing ground. और जैसे मैं इस वचन पे मनन कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे इस प्रकार से बात की, यद्यपि हम अभी इस महामारी के परिस्थिति में हैं, एकदम ही आशा चूर हुई इस हम चौराहे पे हैं जहाँ पे हम आगे को बढ़ने के लिए हम एकदम दुविधाजनक परिस्थितियों से घिरे हुए हैं। So when they were in a situation, there came actually the presence of Jesus Christ but after the resurrection. जब हम देखते हैं, जब वे इस परिस्थितियों में थे, तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद हम देखते हैं वे प्रभु के उपस्थिति में आते हैं। The Lord have been resurrected and came to the disciples and stayed for almost 40 days. यीशु प्रभु पुनरुत्थान होते हैं और अपने चेलों के साथ बाकी के 40 दिन व्यतीत करते हैं। And there is actually, the story begins. There is, what we are going to discuss this morning, what Jesus have started to speak to the disciples. और वही हमारी कहानी शुरू होती है, वही हम बातों को देखते हैं, वही हम देखते हैं यीशु अपने चेलों को बताना शुरू कर देते हैं। Jesus is going to tell them that he is with them. और यीशु उन्हें कहने जा रहे हैं कि वे उनके साथ हैं। The second thing what Jesus wants to convey is he is leaving the work with the disciples. और दूसरी बात वो बताना चाह रहे हैं, वो जीवित हैं, वो उनके चेलों के जीवन में कार्य करने के लिए। No, I think you need to repeat that one more time. Jesus was telling he was leaving the work, the ministry, what Jesus has done to the disciples. और जो चेलों के प्रति उन्होंने सेवकाई की थी, उस सेवकाई के लिए यीशु मसीह जी रहे हैं, और माफ कीजिएगा, यीशु मसीह वो सेवकाई चेलों को सौंप रहे हैं। And the third thing, the disciples have to taken the baton of the ministry. और उसके बाद चेले लोगों को उस सेवकाई की बैटन को लेना है। So they need a hope in the midst of confusion in their life. और उन्हें उनके जीवन के एक दुविधाजनक माहौल में, परिस्थिति में एक आशा की आवश्यकता है। They wanted to know that the Lord was with them in this journey. वो उन्हें जानने की आवश्यकता है, इस यात्रा में प्रभु उनके स्वामी उनके साथ हैं। And many times when I was preaching, I said, for Jesus,
For him, positioning with the Father was more important, but he have taken time for 40 days to stay with disciples to make them strong in the word and for the future. अपने प्रचार के वक्त अक्सर मैं कहता हूं कि यीशु मसीह को अपने पिता के साथ स्थानित होने में बहुत ही ज़्यादा उनको पसंद है, मगर फिर भी यीशु मसीह यहाँ पे 40 दिन निकाल के अपने चेलों के साथ व्यतीत करते हैं And ताकि उन्हें वो मजबूत कर सके। disciples were having full of doubts, disciples were having full of confusions, looking forward. और यहाँ पे हम देखते हैं चेले लोग आगे की ओर देखने के प्रति एकदम दुविधा से भरे हुए हैं, एकदम चिंताओं और शंकाओं से भरे हुए हैं। And in midst of that, junction where they were totally confused, they heard a voice from heaven. और हम देखते हैं उस परिस्थिति में जहां वो एकदम दुविधा और कंफ्यूजन से भरे हुए थे, उस चौराहे पे जीवन के वो लोग स्वर्ग की ओर से एक आवाज को सुनते हैं। And that voice is what we are going to discuss this morning. और वही आवाज के विषय में हम बातचीत करेंगे इस वक्त। Bible says while they were looking up into the sky, angels from the heaven have said, "Ye men of Galilee, why you stand gazing unto heaven?" What was the reference, Pastor? I think it's verse 8. No, can just see the verse 7 or 8. I think. Yeah, you can just say, what I have said to you, that these the disciples were looking in a confused state, and Jesus was, ascending to heaven, and they heard a voice asking, why are जब यीशु आरोहण होते हैं, वे ऊपर की ओर उठाए जाते हैं, उस अवस्था में हम देखते हैं चेले लोग दुविधाजनक थे और ऊपर की ओर आंखें लगाए हुए थे, और ऊपर से एक आवाज आती है, हे गलील के लोग, तुम क्या देख रहे हो? It is verse 11. It is verse 11, chapter 1, verse 11. Thank you, Pastor. और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, उसी रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। So disciples of Jesus had been in a state of confusion, and they were in a state of, so much stress. And that is what the Bible says, where they need an encouragement. तो हम देखते हैं चेले लोग एकदम ही दुविधा के मंजर में हैं और उन्हें वहां पे एक आशा की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए हम देखते हैं हमें उत्साह की जरूरत पड़ती है। And today morning I'm going to discuss with you about 4 issues what the disciples have gone through. और आज सुबह मैं 4 मुद्दों के विषय में आपके साथ बातचीत करूंगा कि किस प्रकार से चेले लोग गुजरे। And that 4 discussions is actually what the promises of God for us also at this day of Pentecost. वो 4 बातचीत हमारे लिए भी आज जो पेंतिकुस्त के दिन है, हम हर एक विश्वासियों के लिए भी वो प्रभु की एक प्रतिज्ञा है। Number 1, it was a compelling departure. और हम देखते हैं वो एक दबावपूर्ण एक अलविदा थी। So the issue number 1 is a compelling departure. वो एक दबावपूर्ण अलविदा था। While Jesus was standing in midst of disciples at the Mount of Olive, instructing them about the task and the truth, he suddenly, Bible says he suddenly was taken up. हम देखते हैं यीशु मसीह उस जैतून के पर्वत पर थे, और जब वे अपने चेलों को जिम्मेदारी सौंपी रहे थे, हकीकत बता ही रहे थे, तो अचानक वो स्वर्गारोहण होने लग जाते हैं। We can say in this way, the gravity what Jesus had, the gravity was suddenly lost its power over Jesus. और हम देखते हैं तुरंत ही जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है यीशु से वो छूटता चला जाता है, तुरंत ही छूट जाता है। And he began to ascend to heaven. In other words, he was disappeared into a cloud. और हम देखते हैं वो स्वर्ग की ओर उठाए जाते हैं, और अगले शब्द में कहा जाए तो वो मानो बादल में लुप्त हो गए, वो बादल में खो गए।
And the cloud which is mentioned in the book of Acts is not a normal symbol, typical rain cloud. और जो जो जिक्र किया गया है प्रेरितों की पुस्तक में, वो बादल एक सामान्य रूप से साधारण बादल नहीं है जो बरसात को लेके चलता है, वो वाला बादल का जिक्र नहीं है। The cloud mentioned in the book of Acts is actually the glory of the Father God. वो बादल जिसका जिक्र है वो परमेश्वर की महिमा है। So in Bible says that Jesus have disappeared into the cloud, means in the other sense, the Father God have come to take him back, to position him back to heaven. और कहा जाए तो कि वो यीशु मसीह बादल में खो गए, लुप्त हो गए। इसको अगला मतलब दिखाया जाता है, मानो ऐसा है कि पिता परमेश्वर अपनी महिमा में यीशु ख्रिस्ट को ले जाते हैं और स्वर्ग में बिठाते हैं। And when you look verse 10 and 11, it is very important because Jesus' ascension was actually a surprise for the disciples, even though they were knowing this is going to happen, but still it was a surprise for the disciples. और हम देखते हैं 11, 10 और 11 पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि चेले जानते थे यीशु मसीह उठाए जाएंगे, मगर जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो जाता है, चेले भी चौंक जाते हैं, वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। Can I say this statement? क्या It ये was actually a second shock for the disciples. मैं इसको इस प्रकार कहना चाहूंगा कि ये चेलों के लिए दूसरी चौंकाने वाली बात थी। What was the first shock? The first shock was the death of Jesus Christ. And the second shock is Jesus, ascending to heaven. ये देखिए यहाँ पे दूसरा झटका हम देखते हैं। पहला झटका ये था चेलों के लिए कि उनके प्रभु मसीह यीशु मारे जाते हैं, और दूसरा झटका ये था कि वे स्वर्गारोहण हो जाते हैं। And in Bible it says disciples were steadfastly looking towards heaven. और बाइबल बताता है कि चेले लोग आकाश की ओर, स्वर्ग की ओर एकदम एकटक लगा के देख रहे थे। It's like they were shocked and looking into heaven. ऐसा कि वो एकदम ही झटका खा गए हो, चकित हो गए और देख रहे हैं आकाश की ओर। On the other word, it says they transfixed. That means they couldn't take off their eyes from heaven, looking. Jesus was disappeared. वो ऐसा है कि उनका ध्यान एकदम मानो कि उनकी आंखें ही चिपक गई ऐसे स्वर्ग की ओर, वो अपना ध्यान को स्वर्ग की ओर से हटा ही नहीं पा रहे थे। Why this was, they were looking into, the heaven in this manner. क्यों वो स्वर्ग की ओर इस मनसा के साथ इस प्रकार देख रहे थे? As I said, it is a second shock for the disciples. जैसे मैंने कहा था, ये चेलों के लिए दूसरी झटका की एक मंजर था। When the COVID has come for the second, on the second time, we all are shocked. We don't know from where to start now. We have already suffered, so much on the first wave. This is the second wave. So we are also in a second shock now. Doesn't know what to do in the future coming days. और मानो हमारे लिए ये जो कोविड का दूसरा लहर भी एक झटका के रूप में है। हम नहीं जानते अगली बार क्या करेंगे, आगे को क्या करेंगे, क्योंकि हमने पहला जो लहर था उसको अनुभव कर चुके हैं, बहुत समस्या को हमने झेला है, मगर हमको अब मालूम नहीं कि अब आने वाला कैसा रहेगा, अब आने वाला समय कैसा रहेगा। For disciples, the ascension of Jesus was actually a change in their life. और ये चेलों के लिए मसीह यीशु का स्वर्गारोहण होना उनके जीवन में एक परिवर्तन था। When I'm speaking to you this morning, listen to me very carefully. The days ahead is going to be a completely change what is going to happen. और जैसे मैं बोल रहा हूँ, इस सुबह ध्यानपूर्वक मुझे सुने, आने वाला जो समय होगा वो एकदम है परिवर्तित समय रहेगा। Disciples of Jesus have left their family. Disciples of Jesus have left their friends. They have left their business. They have left their job. They left everything to follow Jesus. But still, now they are in a second shock, doesn't know what to do. और चेले लोग ने अपने परिवार को त्याग लिया था, चेले लोगों ने अपने मित्रों को त्यागा था, अपना घराना को त्यागा था, अपने पेशाओं को त्यागा था, अपना नौकरी, अपने व्यवसाय को त्यागा था मसीह यीशु के पीछे चलने के लिए। मगर हम देखते हैं यहाँ पे चेले लोग चौंक गए हैं, झटका खा गए हैं। For disciples, it was a departure, but for Jesus, it is a compelling departure to the Father. हम देखते हैं यहाँ पे चेलों के लिए ये एक अलविदा थी, मगर यीशु के लिए ये एकदम ही
एकदम ही दबावपूर्ण स्वर It का was, हाल था, oh, एक जरूरत था, था। यीशु मसीह के लिए जरूरत था जाने के लिए. It was a compelling departure for Jesus Christ. एकदम ही जरूरतपूर्ण अलविदा थी मसीह यीशु के लिए पिता के पास पहुंचने की। And I'm going to give you 3 promises in this departure. और ये मैं इस अलविदा में मैं आपको 3 प्रतिज्ञाएं बताता हूं। And if you are like writing it down, just write it down what I said. Number 1, why Jesus have departed is because Bible says unless he departs, हैं या फिर इनको छोड़ के चले जाते हैं, बाइबल बताती है कि जब तक वो स्वर्गारोहण नहीं हो जाते, जब तक वो पिता के पास नहीं पहुंच जाते हैं, तो पवित्र आत्मा वो नहीं भेज सकेंगे। John chapter 16 verse 7, if you can read John chapter 16 verse 7, it is very important to read that verse. यूहन्ना 16 का 17 पर हम पढ़ेंगे। 17 का 7. यूहन्ना 17 का 7। अब मैं जान गए हैं कि जो कुछ 16:7 आई थिंक। Yeah, 16:7. तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। Hallelujah. So Amen. the departure of Jesus Christ was a compelling departure because when Jesus is going, the Spirit of God will come to disciples. और यीशु मसीह के लिए जाना एकदम ही जरूरी था, क्योंकि अगर वो जाते तभी वो सहायक हमारे पास वो भेजते। Disciples, when Jesus was here, disciples were walking by sight. Disciples were walking by sight. Why? Because Jesus have lived with them. You know, they heard the voice of Jesus Christ. They have seen the miracles and signs and wonders what Jesus have done. Everything was actually, everything was visible for them. They were living in the sight, but now they are going to live in the spirit. जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे, चेले जब यीशु पृथ्वी में थे, तब चेले केवल अपने दृष्टियों के द्वारा जीवन यापन किया करते थे, क्योंकि उन्होंने मसीह यीशु को देखा था, मसीह यीशु की आवाजों को सुना था, यीशु मसीह के किए गए चिन्ह चमत्कारों को उन्होंने देखा था। तब वे मसीह के साथ नजर मिलाते हुए देख के चल रहे थे, मगर अब वे लोग एक आत्मिक तौर से जीने जा रहे हैं। 2 Corinthians chapter 5 verse 7. 2 Corinthians chapter 5 verse 7, it says, walk by faith, not by sight. और 2 कुरिन्थी 5 का 7 बताता है कि क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। And this was actually what's happening to the disciples. तो यही असल में बात हो आई चेलों के पास। Some of them were about to withdraw from the ministry. उनमें से कुछ लोग तो सेवकाई से पीछे हटने की अवस्था में थे। Some of them were scared and sitting behind. They were hiding themselves because of what was happening. और जो कुछ हो रहा था, तो कुछ चेले उन बातों को देखकर, कुछ ऐसे चेले थे वो अपने आप को पीछे कर रहे थे, अपने आप को छिपा रहे थे। And even in this COVID situation, I was listening to many stories around, and one of the story which is hurting me and the church have to understand is those people who have gone through a bad shape in the COVID. I'm not talking about the normal carriers. I'm talking about the people who suffered in the COVID is actually going through a depression now. एक कहानी में अभी के समय में सुन रहा हूँ इस पैंडेमिक के टाइम में कि जो लोग कोरोना से पीड़ित हुए थे, वे लोग क्या हो रहा है कि वे लोग एक प्रकार से तनाव में, एक डिप्रेशन में, गहरे चिंतन में पहुंच गए हैं। And disciples were also actually in a kind of depression because they couldn't understand what was happening. But for Jesus, it was important to go because the Holy Spirit has to come to the church. और हम देखते हैं चेले लोग भी एक प्रकार से तनाव में थे, एक प्रकार से निराशा की अवस्था में थे, क्योंकि उनको मालूम नहीं चल रहा था कि क्या रहा है। मगर pardon sir, after that
Yeah, for disciples, Jesus, why Jesus went was the question. But for Jesus, it was important because the Holy Spirit has to come to the church. चेलों के लिए एक दुविधा की समय थी, जनक थी, प्रश्न था कि क्यों यीशु मसीह उनसे जुदा हो गए हैं, मगर यीशु के लिए एकदम ही जाना जरूरी था क्योंकि वे वापस पवित्र आत्मा को भेजने वाले थे उनके पास. So number one is, unless Jesus go, the Spirit of God will not come to the church. पहली प्रतिज्ञा, पहली बात है, जब तक यीशु पिता के पास ना जाते तब तक पवित्र आत्मा कलीसिया में ना उतर आती. And second reason why this departure, और दूसरा कारण क्यों यीशु मसीह दुनिया को छोड़ के गए. unless Jesus ascend to heaven, there will not be an intercession for us with the Father. और जब तक यीशु मसीह स्वर्गारोहण ना हो जाते, उठाए ना चले जाते, तब तक हमारे और पिता के बीच में कोई भी अन्य मध्यस्थ करता ना होता. In Hebrews chapter 1 verse 3, it says Jesus sat on the right side of the Father God. हिब्रू एक अध्याय में हम देखते हैं वो वचन 1:3 हिब्रानियों 1:3 बताता है कि पिता यीशु स्वर्ग में चले गए और वो पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं. And in Ephesians chapter 2 verse 6, Ephesians 2 verses 6, it says, Jesus ascended to heaven. He took his people to be with him. और इफिसियों में हम देखते हैं कि what was the reference, pastor? Ephesians chapter 2 verse 6. इफिसियों 3 के 2 में नहीं, 2:6. No problem, David. 2:6. Yeah, chapter 2 verse 6. इफिसी 2 का 6 पद में हम देखते हैं यीशु मसीह स्वर्ग में इसलिए गए ताकि वे हमें उनके पास ले जा सकें. And in John chapter 14, Gospel according to John chapter 14 verses 1, 2 and 3, it says, he is preparing a beautiful house in the heaven. और हम देखते हैं 14 यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 1 2 3 4 पद में कि वे स्वर्ग में जाकर हमारे लिए खूबसूरत सा रहने का स्थान तैयार कर रहे हैं. And in Hebrews 7:25, it says he is interceding for us to the Father. और इब्रानियों 7 का 25 बताता है कि यीशु मसीह हमारे लिए पिता के सामने मध्यस्थ कर रहे हैं. So what I'm trying to say, I'm just giving you all the references to let you know that Jesus's traveling or Jesus's departure was a compelling departure because he had to intercede for us. और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, इतने सारे संदर्भ बाइबल के दे रहा हूँ कि यहाँ पे यीशु का जाना इतना जरूरी था कि ताकि वे हमारे लिए मध्यस्थता कर सकें. And number 3, why this compelling departure? और तीसरा, क्यों ये एकदम महत्वपूर्ण था यीशु मसीह का अलविदा कहना या फिर यीशु मसीह का जाना. Listen to me very carefully. ध्यानपूर्वक रूप से मुझे सुने. Jesus went to heaven so that he can come back. और यीशु स्वर्ग इसलिए गए ताकि वो वापस भी आ सके. Hallelujah. Amen. Unless he goes, he cannot come back. For Jesus, it was a compelling departure. There was no choice because he had to come back. If he want to come back, he has to go first. और एकदम ही यीशु मसीह को जाना जरूरी था. यदि वो जाते नहीं तो वो वापस भी नहीं आ पाते, इसलिए उनको जाना जरूरी था ताकि वो वापस भी आ सके. And that's why in John chapter 14 verse 3, he says, he promised to the disciples that he would return to the people back. और 14 अध्याय उसका 3 पद में हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, वो कहते हैं उनका जाना जरूरी है ताकि वो एक दिन वापस आ सके. And that was the same thing disciples heard from the heaven by the angels in Acts chapter 1 verses 9 and 10. Acts chapter 1 verses 9 and 10. The same स्वर्गदूत के द्वारा वही बात उन्होंने सुना. जैसे वे चढ़ाए जाते हैं, स्वर्ग की ओर उठाए जाते हैं, वैसे ही एक दिन वो वापस उतरेंगे. And if you look into the Bible, the last chapter, that is Revelations chapter 22 verse 20, it says he promised again that surely
I come quickly. और बाइबल का अंतिम पुस्तक में हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य का अंतिम यानी कि 22 अध्याय में 20 पद में हम देखते हैं कि वो जरूर से जरूर वो आएंगे वापस। So unless he goes, he cannot come back. जब And तक that is why he had to go. Even disciples were not happy when he was ascended to heaven. इसलिए उन्हें जाना था ताकि वो वापस आ सकें, और इसी बात को लेकर वो चेले निराशा थे कि यीशु मसीह जा रहे हैं। So the first issue was, for disciples it was a departure. For Jesus it was a compelling departure. और पहली बात देखते हैं जो दुविधा थी चेलों के लिए वो थी कि यीशु मसीह जा रहे हैं, मगर यीशु मसीह के लिए वो जाना बहुत ही महत्वपूर्ण था। And I said 3 things because of his departure. Number 1, unless he goes, he cannot send the Holy Spirit. Number 2, unless he goes, he cannot intercede for us. Number 3, unless he goes, he cannot come back. हम यहाँ देखते हैं 3 प्रतिज्ञा इस बात में यीशु मसीह का जाना क्यों था। पहला बात है, अगर वो ना जाते तो पवित्र आत्मा हमें ना भेज पाते, और दूसरा बात को देखते हैं, अगर वो ना जाते तो हमारे लिए मध्यस्थता कोई ना करता, और तीसरी बात वो इसलिए गए ताकि वो एक दिन वापस आए। Praise be to God. Excuse me, Pastor, I'm not able to hear you. My voice is audible? Yeah, right now. Okay, just repeat that. Number 2 is a confusing future of disciples. हम देखते दूसरी बात तो ये थी, चेले लोगों का चौंकना, उनको जो दूसरा झटका लगा था कि मसीह यीशु उनसे दूर जा रहे हैं। Pastor, actually I'm not able to hear you. I believe his network is down. Is my voice audible now? Yeah, now Pastor, I can hear you. Pastor? I think Pastor has a network issue, so let's hope. David, you can ask to switch off the video for some time so that Pastor Blesson can have the connectivity. Actually, I think it has went. It has gone. Yeah, we can message him. Yeah. Yeah. We can all put our videos for off for some time also, so that if the network regains. Yeah, is my audible now? Am I audible now? Yes, Yeah. Pastor. Yeah. Okay, I'm sorry. In I'm between sorry. I lost think, him. yeah, we have the internet issue. Yeah, thank you. Thank you for joining us. The second point, the second issue, what was a confusing future for the disciples. और दूसरा बात हम देखते हैं चेलों के लिए एकदम उनको एकदम ही दुविधाजनक भविष्य उन्हें नजर आ रहा था। Before Jesus was going, disciples had many questions to ask the disciples. और चेले लोग उनसे चेले से यीशु मसीह जुदा होके जा रहे थे, और चेलों के पास बहुत सारी प्रश्न थे। Disciples were confused about what's going to happen tomorrow. और चेले लोग एकदम चिंतित थे कि भाई कल उनके साथ क्या होने वाला है। They asked Jesus about what's going to happen to their future. और यीशु के साथ वो पूछने पर थे कि उनका भविष्य का क्या होगा। They wanted to know when Jesus is going to come. They wanted to know the time of Jesus to come. वो जानना चाहते थे कि यीशु मसीह का वो समय कौन सा होगा जब वे वापस आएंगे। The next question was, they wanted to know when was Jesus going to establish the kingdom of God.
और अगला उनके पास एक सवाल था कि कब यीशु मसीह अपने राज्य को स्थापित करेंगे। So they wanted to know the time. They wanted to know how much more they have to wait. और वे जानना चाहते थे कौन सा समय होगा जब वे आएंगे। वो जानना चाहते थे कि कब तक, कितना समय लगेगा उनको इंतजार The करने। answer of Jesus was not a satisfying answer for the disciples when Jesus answered. जब यीशु ने उन्हें उत्तर दिया तो उनका उत्तर चेलों को उतना ज्यादा संतुष्ट पहुंचाने वाला नहीं था। You know what Jesus answered? Jesus said, "It is not your business to know the time." आपको मालूम है यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? उन्होंने बताया कि इसमें तुम्हें क्या लेना, ये तुम्हारा लेन देन का मामला नहीं है। That is why, there are things where Jesus keep himself, God keep himself. That's why in Deuteronomy chapter 29, verses 29, Deuteronomy 29, verses 29, Deuteronomy 29, 29, it says, the secret things belongs to the Lord. हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 29 का 29 पद में हम देखते हैं परमेश्वर कहते हैं कि रहस्य के बात जो है वो प्रभु के ही है, परमेश्वर की है। So the future is a secret thing. और भविष्य की बात है, एक रहस्य की बात है। No so-called soothsayers, no so-called prophets, no so-called black magicians. Nobody can say what is going to happen in the future. और कोई ना कोई भविष्यवक्ता, ना कोई जादू मंत्र तंत्र मंत्र विद्या करने वाला, ना कोई जादूगर, कोई भी भविष्य के में जो आने वाला है स्पष्ट भविष्य के बारे में नहीं बता सकता। Last day, one of our believer has called me and said, "Pastor, I heard that, I'm not taking up the name of the religion, but one religion have said till 2028 we have time. In 2028 the world is going to end." So, I replied to my believer, in Bible, times are not mentioned but we know that he is going to come. We know that everything is going to end, but the time is not mentioned, and the time will not be set to anyone according to the Bible. कि पिछले दिनों में एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, बता रहे थे, वो मैं उनके धर्म का विषय में जिक्र नहीं करना चाहूंगा। वो यूं बता रहे थे कि पास्टर देखिए 2028 में दुनिया खत्म हो जाएगी, 2028 बस इतना ही है, उसके आगे कुछ नहीं है। मगर मैंने लोगों को बताया, विश्वासियों को बताया कि देखिए बाइबल के अनुसार वहाँ पे कोई भी निर्धारित समय वहाँ पे निर्धारित नहीं किया गया है कि कब प्रभु का आगमन होगा, कब क्या खत्म होगा। मगर हाँ, निश्चय रूप से ये बताता है कि एक दिन संपूर्ण बातें टल जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। While no man or no human being may know what the future hold, कोई भी मनुष्य नहीं जानता है कि क्या उसका भविष्य है, but we know who holds our future. और हम जानते हैं हमारा भविष्य किसके हाथ में है या फिर किसके पास है। Our Father stands outside the time. और हमारे पिता हैं, वो समय के बाहर हैं। He transcends the boundary of time and space. वह समय और वो समय से बाहर हैं, वो समय और स्थान से परे हैं। While we doesn't know what is the future, the Lord already knows our tomorrow. हम नहीं जानते हैं हमारा कल क्या होगा, भविष्य क्या होगा, मगर परमेश्वर को पहले ही मालूम होता है कि कल क्या होगा। He has prepared our ways. He knows our steps. He knows our future. उन्होंने हमारा मार्ग बनाया है, वो जानते हैं हमारे कदमों को, वो जानते हैं हमारा भविष्य को। Hallelujah. Amen. Our world is filled of pain, sorrow, heartaches, lot of tensions, stress among the countries. We have climatic issues. None of us doesn't know what is going to happen tomorrow. But remember what Bible says, our tomorrow is at the hand of God. देखिए हम हमारे दुनिया में देख सकते हैं, दुनिया में बहुत दर्द है, कष्ट है, दयनीय अवस्था है, रीते घात है और देशों के बीच में तनाव है। हम नहीं जानते हैं हमारा कल क्या होगा, मगर हम इतना जानते हैं, बाइबल बताता है कि हमारा कल प्रभु के हाथों में है। Disciples were confused about the future. They were totally stressed about the tomorrow. But I have a promise for you this morning. The one who called you in this journey will not leave you in this journey. He holds your tomorrow.
और हम देखते हैं चेले लोग एकदम दुविधा में थे, एकदम कंफ्यूजन में थे, उनका भविष्य कैसा होगा। मगर हमारा भविष्य प्रभु यीशु के हाथ में है, हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथों में है, और हम उस प्रति ध्यान दे सकते हैं। And listen to me this morning. If somebody in this line who is listening to the word of God, are you having any confusion about tomorrow? Are you stressed out of what's happening around right now? Are you surprised on the things, what you're hearing of? God says, I hold your tomorrow. और मैं जो मुझसे सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं आप ध्यान देके सुने। आप कोई भी परिस्थिति में हो, अभी कोई भी संकट का सामना आप कर रहे हो, आप कोई भी दुविधा की अवस्था में क्यों ना हो कि कल क्या होगा, मगर ये बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर कहते हैं कि कल का जो समय है, कल हमारा कल प्रभु के हाथ में है। And the third challenge, the third issue what the disciples have faced. और तीसरा एक मुद्दा जो चेले लोग संघर्ष कर रहे थे वह यह है, They had a challenging task. और उनके पास एक चुनौतीपूर्ण कार्य था करने के लिए। So can we rewind one more time? What was the issue? Issue number one, it was a compelling departure. और आइए हम उन मुद्दों को हम देखें। पहला मुद्दा था कि एकदम जाने पूर्ण और एकदम महत्वपूर्ण अलविदा या फिर जाना। So the second thing, it was a confusing future. और दूसरा था एकदम भ्रमपूर्ण भविष्य। And the third thing, it was a challenging task. और तीसरा था एकदम चुनौतीपूर्ण कार्य। The assignment what Jesus have got was a challenging assignment. Verse 8, Acts chapter 1 verse 8. प्रेरित 1:8 में हम देखते हैं जो दूसरा एकदम ही महत्वपूर्ण एकदम ही जो कार्य उनको सौंपा गया था यीशु के द्वारा। In verse 8 it says, witness until the ends of the earth. A challenging task. और यहाँ पे बताता है प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 पद कि दुनिया के अंत तक गवाह बनना। They will start from Jerusalem. वे लोग यरूशलेम से शुरू करेंगे। They will preach through Judea. वो जूदिया होते हुए प्रचार करेंगे। They will go through Samaria. और वो सामरिया पहुंचेंगे। And utmost to the world. और दुनिया के छोर तक। Hallelujah. आमीन आमीन। Only 11 disciples, yeah? केवल 11 ही चेले बचे हैं ना? Only 11 disciples. केवल 11 चेले। The task is to capture the world. और जो सौंपा गया कार्य था वो दुनिया को पकड़ना था, दुनिया को पूरा करना था। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The task which is given for Lucknow is very tough for us. जो कार्य जो लखनऊ को दिया गया है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। And we are struggling to gospelize Lucknow. और लखनऊ को सुसमाचार प्रचार करने में संघर्ष कर रहे हैं। And Jesus is giving the disciples the heavy, challenging task is to go until the ends of the earth. मगर यीशु मसीह जो चेलों को एकदम ही बोझपूर्ण, एकदम ही भारी चुनौती वाला कार्य कह रहे हैं, सौंप रहे हैं, वो है दुनिया के छोर तक पहुंचना। And if you are a good student of the word of God, I will show you two things very quickly. यदि आप वचन के बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं तो जल्दी से दो बात मैं आपके बीच में रखूंगा। Preaching and teaching is the ministry what Jesus have given to the disciples. और प्रचार करना और शिक्षा देने की जो जिम्मेदारी थी, कार्य थी, यीशु मसीह ने चेलों को सौंपा था। In Mark 16:15, it says, preach the gospel to the every creature. मरकुस 16 अध्याय उसका 15 पद बताता है संपूर्ण प्राणियों को शुभ समाचार प्रचार करो। But in Matthew 28 verse 19, 28:19, it says, go and teach all nations. और मत्ती 28 का 19 पद में हम देखते हैं वचन बताता है कि सभी लोगों को, सभी जातियों को शिक्षा दो। Hallelujah. Amen. So in Mark it is preaching, in Matthew it is teaching. मरकुस में हम पाते हैं प्रचार करने के विषय में, मत्ती में हम पाते हैं शिक्षा देने के विषय में। The assignment must have been front and center of their mind in this journey.
और इस यात्रा में इस शुभ समाचार को उनके दिमाग में बिठाना था और उनके दिमाग में उनको दिमाग में बिठाना था और भेजना था. And for last 3 years, they have seen, heard, and have been, part of what Jesus was doing. But now they are going to do it. और पिछले 3 वर्ष जो यीशु मसीह कर रहे थे, उनके वे हिस्से वो उनके साथ थे, उनके समूह के हिस्से थे, मगर अब वे स्वयं करने वाले हैं ये कार्यों को. And the task what they have is filled of fear. और जो सौंपा गया कार्य है एकदम भय से प्रचुर है. Jesus has promised them that I am going doesn't mean I am leaving. और यीशु मसीह हमें कह रहे हैं मैं जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, तुम्हें त्याग रहा हूं. This is only in the beauty of English, So Jesus was telling that I am going but not leaving. यीशु मसीह कह रहे हैं मैं जा रहा हूं मगर तुम्हें छोड़ रहा नहीं हूं, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, त्याग रहा हूं. So there are some of the journeys of our life, we don't see Jesus, but actually Jesus is there in midst of us. वहां पे हमारे जीवन की यात्रा में ऐसा पल आता है जहां पे हम मसीह को नहीं, मसीह हमारे साथ नहीं होते मगर मसीह हम में होते हैं. And Jesus doesn't wanted to leave them. That's why in verse 8, he's actually, in verse 5, Acts chapter 1, verse 5, he's assuring disciples, I don't want to leave you. That is why I give you this promise. You will be baptized by the Holy Spirit. यीशु मसीह पद 5 में बताते हैं, प्रेरित का 5 में, तुम्हें त्याग नहीं रहा हूं, छोड़ के नहीं जा रहा हूं, मगर तुम बपतिस्मा पाओगे. The promise of Jesus will happen in just 10 days of time. और इस 10 समय के अंतराल में जो प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने दी थी वो पूरा होने पर था. And that is going to happen and fulfill for a great task for the future. और वही महान जो कार्य है भविष्य का उसे पूरा करने जाएगा. And many of you are thinking, how will you accomplish the task? God says, even though it is tough, the promises of God is that he will make sure that he will complete the task through you. और जो कार्य आपके प्रति है आप उसके विषय में चिंतित होते होंगे कैसे उसे पूरा करेंगे, मगर परमेश्वर आपको उस कार्य को पूरा करने के लिए मदद करेंगे और वो ही पूरा करेंगे. In verse 8, again Jesus says, I know it is a challenging task, but you will not do this task by yourself. You will do it by the power of the Holy Spirit. 8 पद में बताते हैं ये जो महान कार्य सौंपा गया है चेलों को, यीशु चेलों से कहते हैं कि ये तुम अपने आप से नहीं करने वाले हो, मगर जो सामर्थ तुम्हें मिलेगी उस सामर्थ के द्वारा तुम ये कार्य करने. Holy Spirit will empower for the mission of God to accomplish. और परमेश्वर के सेवकाई को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा ही ऊर्जावान ताकतवान हमें सामर्थ प्रदान करते हैं. They were promised by Jesus with the power, with the touch, with the blessing. और यहाँ पे प्रतिज्ञा उन्हें मिली गई थी परमेश्वर के सामर्थ के लिए, आशीष के लिए और स्पर्श के लिए. And I tell you this morning, in this day of Pentecost, the mind of Jesus has not changed. और इस पेंतिकुस्त के दिन में भी मसीह हमारे प्रभु का मन बदला हुआ नहीं है. Can I ask you this morning, do you know why are you in this world? मैं आपसे पूछ सकता हूँ इस सुबह एक प्रश्न कि इस दुनिया में आप क्यों हो? Why are you taking this challenging task? क्यों आप ये चुनौतीपूर्ण कार्यों को अपने ऊपर ले रहे हैं? You still live in this earth is to represent heaven. क्योंकि अभी भी आपको इस पृथ्वी में जीवन जीना है, पृथ्वी का स्वर्ग की प्रतिनिधि करते हुए. Do you know why do you live this morning? आपको मालूम है कि इस सुबह आप क्यों जीवित हैं? You live because you reflect Christ Jesus. आप इसलिए जीवित हो ताकि आप मसीह को प्रतिबिंब आप कर सकें. Do you know why do you live this morning? आपको मालूम है क्यों आप इस सुबह जीवित हैं, जीवन जी रहे हैं? Jesus wants you to witness the kingdom of God. यीशु मसीह चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य की गवाही आप बने. The task is heavy, but by the Holy Spirit, the task will be easy. सौंपा गया कार्य बहुत ही भारी है, मगर पवित्र आत्मा की वजह से वो कार्य भार हमें एकदम हल्का हो जाएगा. I want you to look into the 2 Corinthians chapter 3.
मैं चाहता हूं आपको दूसरा कुरिन्थी उसका 3रा अध्याय को आप देखें। And Jesus, Paul says to the church that you are the epistle of the kingdom. और यहाँ पे पौलुस कलीसिया को बताता है कि तुम कलीसिया परमेश्वर के राज्य की पत्रियां हो। What does that mean? उसका मतलब क्या है? It means we are God's letter of love. इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के प्रेम पत्र हैं, पत्रियां हैं। And we are the grace to the lost. और हम खोए लोगों के लिए अनुग्रह हैं। When the world read us, they should realize the love through us. जब एक दिन दुनिया हमें पढ़ेगी तो उन्हें यह जानना पड़ेगा प्यार हमारे द्वारा। And in Ephesians chapter 2 verse 10, it says, 10 पद it says we are God's workmanship. वो बताता है इफिसी 3 का 10 पद No, हम 2 का 10. इफिसी 2 का 10 बताता है कि हम परमेश्वर के लिए सृजे गए भले कर्मों के लिए सृजे गए व्यक्तित्व हैं। We are the workmanship of the kingdom. हम परमेश्वर के राज्य के लिए भले कार्यों के लिए सृजे गए कार्यकर्ताएं हैं। The word workmanship in this passage means we are a poem for God. A poem. ओके, तो यहाँ पे जो वर्कमैनशिप क्या कहा गया है, भले काम करने के लिए कार्यकर्ता, इसका मतलब है परमेश्वर की ओर से एक कविता हमारे लिए। And God says this morning, और परमेश्वर इस सुबह कहते हैं, the task is heavy. जो सौंपा गया कार्य एकदम ही भारी है। The assignment is actually a supernatural assignment. और जो सौंपा गया कार्य वो एकदम ही अलौकिक है। And this is the Father's business. और यही पर पिता का व्यवसाय है। And God is going to use you to do this heavy task. और परमेश्वर इस कार्य को पूरा करने के लिए आपका इस्तेमाल करें। The promise in this day of Pentecost और is इस you दिन have में- a challenging task, but God is going to make it possible. और इस पेंतिकुस्त के दिन में प्रतिज्ञा यह है कि आपके पास जो एक महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण कार्य है और परमेश्वर ही उस कार्य को पूरा करने के लिए आपको सामर्थ्य देंगे। And the last point, और अंतिम पॉइंट है the issue number 4. और चौथा मुद्दा। So the issue number 1, और यहाँ पे पहला मुद्दा, let me repeat that one more time. Issue number 1, मैं उसे एक और बार दोहराता हूँ। पहला मुद्दा है it was a compelling departure. ये एकदम ही महत्वपूर्ण अलविदा है। Issue number 2, दूसरी मुद्दा, what was issue number 2? दूसरा मुद्दा क्या था? Somebody there writing up? यहाँ पे कोई लिख रहा है। What was issue number 2? दूसरा Confusing. मुद्दा क्या था? It was a confusing future. और ये एकदम ही भ्रमित भविष्य था। Number 3, और Challenging. तीसरा, it was a challenging task. और ये एकदम चुनौतीपूर्ण कार्य था। And number 4, और चौथा, they don't know what is the promise, but Jesus said a comforting future. उन लोगों को प्रतिज्ञा मालूम नहीं थी, मगर यीशु मसीह उनको एक दिलासापूर्ण भविष्य The देते। mind of disciples were confused. They doesn't know from where to start and where to end. चेले का मन एकदम भ्रमित था, वो भ्रमपूर्ण थे, उनको मालूम नहीं था कहाँ से शुरू करके कहाँ खत्म करना And है। I just want everyone to listen now very carefully. मैं चाहता हूँ हर एक लोग ध्यानपूर्वक रूप से सुने। They heard the preaching of Jesus 3.5 years. उन्होंने 3.5 वर्ष मसीह की प्रचार को सुना था। They heard the teaching of Jesus for 3.5 years. 3.5 वर्ष उन्होंने मसीह का शिक्षाओं को सुना था। They heard the promises to them for 3.5 years. उन्होंने 3.5 वर्ष उन प्रतिज्ञा जो उनके लिए थी उन्हें They heard the word of God, which is eternal, for 3.5 years. और उन्होंने वो वचन को सुना था, परमेश्वर का वचन जो अनंत है 3.5 वर्ष तक। So they have everything for 3.5 years. 3.5 वर्ष में उनके पास सब कुछ उनको मिला, But still, in this junction, they are confused. मगर इस चौराहे पे वे लोग एकदम भ्रमित हैं, दुविधाओं से भरे हैं।
We, the people of God, we have the scripture in our hands. हम परमेश्वर के लोग, हमारे हाथ में परमेश्वर का वचन है We know what is the Bible says about tomorrow. और हम जानते हैं बाइबल कल के विषय में क्या कहता है. But still, when the corona has come, the small unseen virus, मगर You know- कोरोना जब आया, जो एकदम ही दिख नहीं सकता एक छोटा सा वायरस, we forgot the promise. और हम प्रतिज्ञा भूल गए, We forgot the scripture. हम वचन भूल गए. We forgot, what Jesus have taught us to us in the, in the days. और हम भूल गए उन बातों को जो यीशु मसीह ने सिखाए थे पहले हमें. We are terrified. और हम एकदम ही भयभीत हो गए We are running around. और हम इधर उधर भागते हैं. Some people are getting depressed. कोई लोग एकदम ही निराशा में चले जाते हैं. Some of you have many questions this morning. और इस सुबह आप में से कितनों के पास बहुत सवालें होंगे. And some of you are asking, Pastor, can you tell me what is going to happen tomorrow? आप में से कितने लोग पूछ रहे होंगे कि पासवान जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब क्या होगा. Last day, one person have called me and said, he was compelling me to prophesy that, I should prophesy what will happen tomorrow. पिछले दिन में कोई एक व्यक्ति थे, मुझे एकदम दबाव दे रहे थे. वो एकदम ही मुझे दबाव दे रहे थे कि कल क्या होगा उसके विषय में भविष्यवाणी करें. And when God is not revealing to me what will happen tomorrow, how should I preach or how should I tell or prophesy about tomorrow? यदि परमेश्वर ही नहीं बता रहे कल क्या होगा, तो कैसे मैं बता दूं कि कल क्या होगा. But I tell you this morning, मगर मैं इस सुबह आपसे कहता हूं, the voice from heaven is still audible. Why are you looking or why are you staring unto heaven? तो अभी भी वो आवाज हमारे कानों में गुंजयमान है, जो आवाज स्वर्ग की ओर से आया था कि किस बात को, क्यों ऊपर की ओर तुम ताकते हो, क्यों ऊपर की ओर तुम देखते रहते हो. You have the promise, आपके पास वो प्रतिज्ञा है and your promising is actually a promise which suits your heart. और जो प्रतिज्ञा आपको मिली है वो आपके हृदय के साथ तालमेल खाता है. The voice from heaven, जो आवाज स्वर्ग की ओर से आई थी, this same Jesus वही will यीशु, come back as the way that he went up. वो आवाज जो स्वर्ग से आई थी, वो यीशु जो अभी गए हैं, स्वर्ग आरोहण हुए हैं, स्वर्ग में गए हैं, एक दिन वापस आएंगे. The implication is clear. और यहाँ पे कहने की बात एकदम स्पष्ट है. Now the business is on your hand. अभी ये जो व्यापार है, ये काम है, वो अभी आपके हाथों में है. Can you fulfill that assignment? क्या वो सौंपा गया कार्य को आप पूरा करेंगे? You may not know what is going to happen tomorrow, but you know what you should do today. शायद आपको मालूम नहीं कल क्या होगा, मगर आप ये जानते हैं कि आपको क्या करना है आज. God have given you an assignment. परमेश्वर ने आपको एक कार्य सौंपा है. You are not doing it, but you are worried about tomorrow. आप उस कार्य को नहीं करते हैं, मगर कल के विषय में चिंता लेते हैं. And God is speaking to you this morning. और परमेश्वर इस सुबह आपसे बातें कर रहे हैं. Can you do what God said to you? जो आपको परमेश्वर ने कहा है, क्या आप उसे करेंगे? The future of yours are secured in the hand of God. आपका भविष्य परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है. And that is the good news in the day of Pentecost. और पेंतिकोस्त के दिन में वो एक शुभ समाचार है. You are safe. आप एकदम सुरक्षित हैं. Your future is secured. आपका भविष्य एकदम सुरक्षित है. Your positioning is promised. आपका स्थान, आपका ओहदा एकदम ही सुरक्षित है. You may not have a house in Lucknow, but you have a secured, a beautiful house in the heaven. यदि भले आपका पास लखनऊ में घर नहीं है, मगर आपके लिए स्वर्ग में खूबसूरत सा घर सुरक्षित तैयार है. When last day, in Israel, when the bombs were, hitting there and here, I came to know about, the rooms they construct, when missiles and bombs, used to come, they have a small room, safety room, where they get inside for their safety. And when I was looking at that room, very small room, maybe 5 feet, 5 into 5 feet, small room where they stand inside that room. But for us, we have a secured room in heaven. And Bible says about that room,
is not a room, it is a mansion where your future are secured in Christ Jesus. Amen, amen, amen. पिछले दिनों में Okay. जब देख रहा था और न्यूज़ों को देख रहे थे, हम वहाँ पे इजराइल में बम की बरसाएं हो रही थी, मिसाइलें दागे जा रहे थे। उस समय में इजराइल के पास एक तरीका था उन बमों से बचने का, मिसाइलों से बचने का। उन्होंने एक कमरे तैयार किए गए थे जिनको बम शेल्टर्स कहते हैं। उन कमरे में वो कमरा एकदम ही छोटा था, मानो वो तकरीबन 5 बाय 5 फीट का बहुत ही छोटा कमरा, और वहाँ पे वे लोग उस बमों से बचने के लिए खड़े होकर उसके कमरे में रहते थे। मगर वो बात मुझे एक बात याद दिला रहा था कि परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारे लिए एक कमरा तैयार किया है। वो कमरा नहीं है, वो एक भव्य भवन है, भव्य वो बंगला परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार कर रखा है, एकदम सुरक्षित स्वर्ग में। Hallelujah! So we have a comforting future. और हमारे पास एकदम ही दिलासापूर्ण भविष्य हमारे पास है। Are you stressed this morning? क्या इस सुबह आप चिंतित हैं? Jesus is speaking to you. यीशु आपसे बातें कर रहे हैं। Do not worry about anything. किसी भी बात के लिए चिंता ना करें। God knows what you're going through. परमेश्वर जानते हैं आपके साथ क्या होगा। He will make you out of it what you're going through. जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से जरूर बाहर निकालेंगे। David's brother Roger is here in Dubai. So when I was talking to him, I don't know, he's in the line now. I said to him to join up in the line this morning. And God willing, I'm going to meet him tomorrow. So when I spoke to him last day, he's looking for a job. He's confused in many areas, but I promised him, your future is secured in the hands of Jesus Christ. और यहाँ पे भाई डेविड हैं, यानी कि मेरे भाई रोजर जो हैं अभी दुबई में हैं, और वे भी काम की सिलसिला में वहाँ पे काम ढूंढ रहे थे और एकदम ही भरम से भरे हुए थे, दुविधा चिंताओं से भरे हुए थे। और उनसे मैं जल्दी मुलाकात भी करूंगा और कल को, और मैंने उनको यहाँ पे मीटिंग में जुड़ने के लिए भी कहा था, मगर मालूम नहीं वो मीटिंग में जुड़े हैं कि नहीं। मैंने उनको यही बताया कि आपका जो भविष्य है वो एकदम सुरक्षित है। You should not be confused. आपको एकदम भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। Just continue to do what you are supposed to do. जो चीज आपको करनी चाहिए, उस करने वाली चीज को आपको बस निरंतरता देना है, करते रहना। Don't break your head for tomorrow. कल के लिए अपने सर को आप ना तोड़ें। Just continue to do what you are supposed to do. जो चीज आपको करना है उस बात को आप करते जाएं, Because your tomorrows are in the safe hand. क्योंकि आपका कल एक सुरक्षित हाथों में है। He has a comforting future for you. और हमारे लिए एकदम दिलासापूर्ण भविष्य है। I just want to pray for you this morning. इस सुबह मैं आपके लिए बस प्रार्थना करना चाहता हूँ। Disciples were confused, चेले लोग एकदम भ्रम से भरमपूर्ण हो गए थे, दुविधा से। but the great Pentecost is coming. जब वो महान पेंतिकुस्त आ रहा है, And I pray that the Pentecost will repeat in our Lucknow church. आमीन। और मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे लखनऊ की कलीसिया में वो पेंतिकुस्त, महान पेंतिकुस्त दोहराया जाए। We will see the glory manifestation of the heaven. और हम देखेंगे स्वर्ग की महिमा को प्रकट होते हुए। And from this Lucknow church, the Lord will raise many people of God for the gospel. आमीन। और लखनऊ की कलीसिया के द्वारा कलीसिया से परमेश्वर सुसमाचार के कई लोगों को खड़ा करेंगे। We are more than 11 this morning. हम लोग इस सुबह में 11 से कई ज्यादा बढ़कर हैं। We are more than 11 this morning. इस सुबह 11 लोग से ज्यादा हैं हम। But the task when Jesus gave, it was to 11 people. और जो कार्य सौंपा था वो 11 लोगों को यीशु मसीह ने दिया था। But this morning, Jesus is calling you. मगर इस सुबह प्रभु यीशु आपको बुला रहे हैं। How many of you are ready to pray with me this morning? आप में से कितने लोग तैयार हैं मेरे साथ इस सुबह यह प्रार्थना करने के Pray लिए? with me this morning this prayer. मेरे साथ इस सुबह यह प्रार्थना करें। I will not be worried about tomorrow, but I will be assuring myself that I will complete my task which is given to me. मैं कल के विषय में चिंता ना करूंगा, मगर जो कार्य मुझे सौंपा गया है मैं उस कार्य को पूर्ण करूंगा, सुनिश्चित होकर आश्वासित होकर पूरा करूंगा। I want you to pray with me now. I want you to pray in the spirit now.
मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ प्रार्थना करें, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आत्मा में आप प्रार्थना करें। I will not worry about tomorrow मैं कल के विषय में चिंता नहीं करूंगा, because my tomorrow is in the safe hand. और कल क्योंकि मेरा कल एक सुरक्षित हाथों में है। My tomorrow is secured. मेरा कल सुरक्षित है। I have a promise for tomorrow. मेरे पास कल के लिए प्रतिज्ञाएं हैं। I have a secure tomorrow, मेरे पास एक सुरक्षित कल है, but I have a task today to complete. मगर मेरे पास आज कार्य है जिसको मुझे पूरा Many करना है। times I failed to complete my task, worrying about tomorrow. शायद बहुत बार बहुत समय में कल के विषय में चिंता करते हुए कार्यों में असफल रहा। And today I decide and I dedicate my life मैं आज निर्णय लेता हूँ पूर्ण that रूप से I समर्पण will होने के लिए accomplish the plan of God. मैं परमेश्वर के कार्यों को पूरा करूंगा। I will be पूरा करूंगा। faithful to preach and teach and witness the kingdom of God. तो विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के राज्य का विषय में प्रचार करना, शिक्षा देना और गवाही बनने के लिए मैं तैयार हूँ। And from today, I will not break my head thinking about what's going to happen tomorrow. आज से मैं अपने दिमाग को नहीं चकराऊंगा, नहीं तोड़ूंगा, सोचते हुए चिंता करते हुए कि कल क्या होगा। And this day, I dedicate my life. और आज के दिन में अपने जीवन को पूर्ण समर्पित करता हूँ। Rewinding one more time. Number one, the confusion was a compelling departure of Jesus Christ. और हम देखते हैं फिर वो उन मुद्दों को फिर से हम दोहराते हैं। पहला था यीशु मसीह का महत्वपूर्ण रूप से जाना, एक महत्वपूर्ण जाना था, अलविदा था। For the disciples, it was a confusing future. चेलों के लिए एक दुविधाजनक भ्रमित भविष्य था यह। For disciples, it was a challenging task. और चेलों के लिए ये एक एकदम ही चुनौतीपूर्ण कार्यभार था। For disciples, it was a comforting future. यहाँ पे चेलों के लिए एक आश्वासित एक दिलासापूर्ण भविष्य उनके साथ है। And can you take a decision this morning? क्या आप इस सुबह निर्णय ले सकते हैं? Jesus, I submit my life. यीशु मैं मेरे जीवन को समर्पित करता हूँ। After seeing this, tragedies around, our city, after seeing a lot of, bad things happening around, after hearing to a lot of bad newses, I'm totally confused. But thank you, Jesus, for speaking unto me because my future is in your hand. तो आप प्रार्थना यूं कर सकते हैं इस मंजर में जहाँ पे हम एक बुरी खबरें को देखते सुन रहे हैं, बुरी खबरों को देख रहे हैं, बुरी बातें होते हुए देख रहे हैं, और हम ये कह सकते हैं कि प्रभु मैं जानता हूँ मेरा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है और मेरे पास मेरा कल एकदम ही दिलासापूर्ण है। Can you ask a forgiveness from God now? क्या आप परमेश्वर से क्षमा मांग सकते हैं अभी? If in the past, if you couldn't be faithful on the work what God have given you, can you pray right now? Father, I submit myself. I have failed in the task what you gave me, but I dedicate my life to complete my task, what you have bestowed upon me. आप ये प्रार्थना कर सकते हैं कहते हुए, ये क्षमा मांगते हुए, यदि आपने जो कार्य आपको सौंपा गया था उस कार्य को करने के लिए भूतकाल में पिछले समय में आप असफल रहे हैं, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं क्षमा मांगते हुए, पिता मुझे क्षमा करे, जो कार्यभार मुझे सौंपा गया था उसको करने के लिए प्रभु मैं असफल रहा, मगर फिर से मैं अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करता हूँ उस कार्य के प्रति जो आपने मुझे सौंपा है उसे करने के लिए। Can you pray with me this morning? Lord, give us the day of Pentecost back. आप मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं उस सुबह में कि परमेश्वर वो पेंतिकुस्त का दिन हमें दें। Lord, we want to see the day of Pentecost again. प्रभु आज हम वो पेंतिकुस्त का दिन देखना चाहते हैं। As the world celebrates the Pentecost, we as the church wants to experience the Pentecost. जैसे दुनिया पेंतिकुस्त का दिन आज मना रही है, मगर हम कलीसिया वो पेंतिकुस्त का दिन का अनुभव करना चाहते हैं। Lord, let your will be done. प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने पाए, Let your plans be established. होने पाए परमेश्वर आपकी योजनाएं पूरी, Let your kingdom come. आपका राज्य आए, Let your name be glorified. आपका नाम महिमावंत हो जाए। I bless this people this morning in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. मैं इन लोगों को इस सुबह आशीषित करता हूँ पिता पुत्र के नाम से
और पवित्र आत्मा। Father, we bless your holy name and thank you for listening our prayer. पिता आपके नाम को हम धन्य कहते हैं और आज सुबह हम